কণ্ঠ উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক তুফানগঞ্জ কোচবিহার। আজকে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপির মণ্ডল পর্যায়ের সকল কার্যকর্তা সমেত তদূর্ধ্ব কার্যকর্তাদের এক মহাসম্মেলন ছিল। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি। আমরা অমিত শাহজির ভাষণ শুনব। অমিত শাহজি বারবার পশ্চিমবঙ্গের আশু বিপদ, যে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী বারে বারে তুলে ধরেছেন। মাননীয় মমতা ব্যানার্জির প্রশ্রয়ে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা সারা পশ্চিমবঙ্গে জাঁকিয়ে বসে আছে। এমনকি রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরাও বহাল তবিয়তে লাখে লাখে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে। এই বিষয়টি আসছে। আর আসছে পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতি, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি। কয়েকটা দুর্নীতির কথা বলা যায়। শিক্ষা দুর্নীতি থেকে আরম্ভ করে মাটি দুর্নীতি, গরু দুর্নীতি, আর কত বলা যায়। তা রোডম্যাপ আজকে স্থির করে দিয়েছেন 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই হিন্দু বিরোধী তৃণমূল এবং মমতা ব্যানার্জি সরকারকে যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাত করা না যায়, তাহলে বাঙালি হিন্দুদের কোনো অস্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। এই পর্বেই আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়। বিভিন্ন মিডিয়ায় বারবার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। বিভিন্ন মিডিয়ায় বেশ সুন্দর হেডনাম হয়েছে, অমিত শাহজি কলকাতায় আর জামাই ষষ্ঠীতে দিলীপ ঘোষ। আমরা সাধারণ কর্মী, উপরের স্তরের রাজনীতি অতটুক জানি না। একই প্রশ্ন বারবার শুভেন্দু অধিকারী এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারজিকেও করা হয়। সুকান্ত মজুমদারজি বারবার করে বলছেন যে ব্যাপারটি আমাদের হাতের বাইরে, ব্যাপারটি সর্বভারতীয় স্তরে। মাননীয় দিলীপ ঘোষ সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন, হয়তো এখনও কোনো সাংগঠনিক দায়িত্ব পাননি, তবু নাছোড়বান্দা সাংবাদিকরা এই সমস্ত আবল তাবল প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। আমরা সেদিকে নজর না দিয়েও বলতে পারি, আমরা সাধারণ বিজেপি কর্মী যারা মমতা ব্যানার্জির দীর্ঘ শাসনে অত্যাচারিত, তারা মাননীয় দিলীপ ঘোষের দীঘার মন্দির উদ্বোধনে যাওয়া সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। আবার এই দিলীপ ঘোষই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জিকে যে ব্যক্তিগতভাবে মমতা ব্যানার্জির গায়ে দুর্নীতির কোনো কাদা লাগেনি। তাহলে প্রশ্ন করতে হয় মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয়কে, তাহলে আমরা যে সংবাদপত্রে দেখি 25-75 ভাগে সব টাকা নাকি কালীঘাটে যাইতো। কালীঘাটে কোথায় যাইতো মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয় যদি বলেন। আর দিলীপ ঘোষকে ডাকা হয়েছে কি হয় নাই, উনি গেলেন কি গেলেন না, উনি কেন বিয়ে করলেন, এ নিয়ে তৃণমূলের এত মাথা ব্যথা কেন, বা তৃণমূল প্রভাবিত বিভিন্ন মিডিয়ার এত মাথা ব্যথা কেন? এটা বিজেপির আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ব্যাপার। যারা সাংগঠনিক দায়িত্বে আছেন তারাই বলতে পারবেন। অনেক বিষয় আছে যে সাংগঠনিক বিষয়গুলো প্রকাশ করা হয় না।
মাননীয় দিলীপ ঘোষকে নিয়ে কি করা হবে, কি করবেন, এটা উপস্তরে সিদ্ধান্ত হবে। এত কিছু বলার পরেও বারবার একই প্রশ্ন খুঁচায় খুঁচায় সাংবাদিকরা আমাদের নেতৃত্বের সামনে তুলছেন। আমি একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে আমার প্রতিক্রিয়া দিলাম। আমরা 21-এর নির্বাচনে একটা ঘটনা আমার মনে খটকা লাগে, বারবার আমার ভিডিওতে আমি বলি, সেটা হলো সকাল 10টার দিকে ভোট গণনার দিন মাননীয় দিলীপ ঘোষ স্টেটমেন্ট দিয়ে বসলেন আমরা হেরে গেছি। তখন পর্যন্ত অনেক কেন্দ্রে ভোট গণনাই শুরু হয়নি। হঠাৎ করে এমন স্টেটমেন্ট দিলীপ ঘোষ দিলেন কেন? মাননীয় দিলীপ ঘোষের কাছে আমার এই প্রশ্নটি থাকলো। আপনারা সকলেই দেখুন আজকের প্রোগ্রাম। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম যে চিত্র আমরা বাড়িতে বসে থেকে দেখলাম, কানায় কানায় পূর্ণ, বিজেপির কর্মীরা উচ্ছ্বসিত এবং চার্জ আপ হয়েছে। দেখা যাক 26-এর লড়াই কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। भारत माता की। क्यों भाई? बंगाल के मंडल पदाधिकारियों की आवाज को क्या हो गया है? बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमूदार जी, मेरे मित्र और बंगाल विधानसभा में जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, ऐसे हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी, सह प्रभारी अमित मालविया जी, बैठे हुए सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और बंगाल के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले अरे अब सुनो भाई, सुनो। जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहले थोड़ा दूर है।
तो बहनों, सबसे पहले मैं श्री कालीघाट मंदिर, श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब ये बंगाल की वीर भूमि पर, संस्कार भूमि पर आया हूं, तब कवि गुरु टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी पार्टी के स्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है, दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने, उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को
धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए, और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों